بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لڑکی بہت ہی حسین تھی، مگر اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ غصے سے مجھ پر غرا رہی تھی۔ میں ایک دم ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا ہے، اس سب میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ مگر وہ مجھے ہر چیز کا الزام دیتی وہاں سے چلی گئی۔ میرا نام سلمہ ہے، میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ ابا کھیتی باڑی کرتے تھے اور اماں گھر کے کام کرتی تھی۔ اسی طرح ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ بھائی مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ اماں نے اس کے رشتے کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی تھی۔ اماں کا ارادہ خاندان سے باہر شادی کرنے کا تھا، کیونکہ خاندان والوں سے اماں کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ اس لیے اماں نے ابا سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ بہو باہر سے لائیں گی۔ اسی وجہ سے ابا نے اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ خاندان والوں نے ہم سے تعلق توڑ رکھا تھا۔ اس کی وجہ ابا اور اماں کی شادی تھی، کیونکہ ابا نے اپنے بچپن کی منگنی توڑ کر اماں سے شادی کی تھی۔ اس کے بعد سب خاندان والے ہم سے دور ہی رہتے تھے۔ ایک دن میری چھوٹی چاچی ہمارے گھر آئی اور اماں سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہو تو خاندان میں کیوں نہیں ڈھونڈ رہی؟ اماں نے خاموشی سے ان کی باتیں سنی، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں۔ میں بھی کچھ ایسا ہی چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی وہ کزن بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ مگر میری اماں نہ جانے کیوں ان لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب تک اماں کی اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیوں نہیں بن رہی تھی۔ اتنے سال ہو چکے تھے، مگر اب تک وہ ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ میں ان سب کی وجوہات نہیں جانتی تھی، مگر میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جب میری شادی ہوگی تو میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ مل جل کر رہوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے اپنے رشتہ داروں سے دور رہیں۔ مگر اماں میری سوچ سے اتفاق نہیں کرتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں غلط سوچتی ہوں۔ مگر میں اماں سے کہتی کہ اماں خاندان کے ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے۔ چلیں بے شک ان کے ساتھ نہ رہا جائے، مگر کم از کم ان کے ساتھ تعلقات تو رکھنے چاہیے، رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اماں ان کو بوجھ سمجھتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ رشتہ دار ان کی آزادی چھین سکتے ہیں۔ خیر، میرے اور اماں کے بیچ یہ بحث چلتی رہتی تھی، اور اب کچھ دن بعد بھائی کی شادی تھی، تو اماں نے اپنی مرضی سے ہی بہو ڈھونڈی تھی۔ وہ شہر کی رہنے والی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ گاؤں میں آ کر رہ پائے گی یا نہیں، لیکن خیر، اماں کا یہ فیصلہ ٹھیک ہی تھا۔ وہ بآسانی ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ اب اماں کو میری شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میری بھی شادی ہو جائے، اور وہ میری شادی بھی خاندان سے باہر ہی کرنا چاہتی تھی۔ ابا اور بھائی خاموش ہی رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اماں نے جو کہا ہے وہ وہی کریں گی، اور وہ کسی کو نہیں سنتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اماں کی ضد پر غصہ بھی آ جاتا تھا، لیکن کیا کرتی، وہ میری ماں تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی میں۔ یہ بات ہم سب جانتے تھے کہ میری بڑی پھپھو کی بہت زیادہ خواہش ہے کہ وہ مجھے اپنی گھر کی بہو بنائے، مگر اماں کی ناراضگی کے ڈر سے وہ اس بات کا کبھی بھی ذکر نہیں کرتی تھی، اور ابا بھی یہ چاہتے تھے کہ میں ان کی بہن کے گھر ہی بہو بن کر جاؤں۔ لیکن ہم سب خاموش رہے۔ مجھے کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے اپنی شادی کا فیصلہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، وہ جو فیصلہ کرتے مجھے قبول ہوتا۔ اماں نے رشتہ کرنے والے سے بات کی اور کہا کہ شہر میں کوئی رشتہ ڈھونڈے۔ کچھ دن بعد وہ ایک رشتہ لے کر آئی۔ اماں کو لڑکا تو پسند آ گیا، مگر اس کی فیملی بہت بڑی تھی۔ اماں انکار کرنے ہی لگی تھی، مگر ابا نے اس بار زور دیا اور انکار کرنے سے صاف صاف منع کر دیا۔ میں بھی ابا کی سائڈ پر ہی تھی۔ پھر مجبوراً اماں کو یہ رشتہ قبول کرنا پڑا۔ یوں میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 2 مہینے بعد میری شادی کر دی گئی۔ میں اپنا گھر اور گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئی۔ لڑکے والوں کی طرف سے بہت بڑی بارات آئی تھی۔ نہ جانے کون کون رشتہ دار بارات میں شامل تھے۔ وہ سب مجھے رخصت کر کے سسرال لے گئے۔ سسرال کافی بڑا تھا۔ میں چھوٹے سے گھر سے آئی تھی، اور یہاں پر اتنا بڑا خاندان دیکھ کر میں فوراً سے گھبرا گئی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں ان سب کا خیال کیسے رکھوں گی اور سارے کام کیسے کروں گی۔ اور میں نے سن رکھا تھا کہ اتنے بڑے خاندانوں میں تو خاندانی سیاستیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کر رہی تھیں، مگر پھر میں نے بمشکل خود کو سنبھالا، کیونکہ میں دلہن تھی اور میرا ہر عمل دوسروں کی نگاہوں میں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی میری پریشانی سے کوئی بھی غلط مطلب نکالے، اس لیے میں چپ چاپ ان کی رسموں میں ان کا ساتھ دیتی رہی۔ کچھ دیر بعد ساس نے جب دیکھا کہ میں کافی تھک گئی ہوں، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دلہن کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آ جاؤ۔
मैंने शुक्र अदा किया, क्योंकि बैठ बैठ कर मेरी कमर दर्द कर गई थी। नंद मुझे मेरे कमरे में लेकर चली गई। छोटा सा कमरा था और फूलों की सजावट से भरा पड़ा था। एकदम मेरा दिल डूबने लगा। ये छोटा सा कमरा मेरे जहेज के सामान से भरा पड़ा था। नंद ने मुझे पानी वगैरह पीने को लाकर दिया और कहा कि आप आराम करो और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है। उसके चले जाने के बाद अभी मैं बामुश्किल कमर सीधी ही कर पाई थी कि उसी वक्त दरवाजे पर एक हल्ला मच गया। वो दरवाज़ा खोलकर मेरे शौहर की कज़नें एक जम्मे गफ़ीर की मानिंद मेरे कमरे में आकर बैठ गईं। उन सबको देखकर मुझे लगा जैसे बस मैं ख़त्म ही हो रही हूँ, क्योंकि मुझ में और मज़ीद किसी किस्म की रस्म की हिम्मत नहीं थी, मगर उनकी रस्में थीं कि ख़त्म नहीं हो रही थी। अल्लाह अल्लाह करके सास ने सबको डांटा और वहाँ से बाहर निकाला तो मुझे थोड़ा बहुत सुकून आया। मैं इतने बड़े ख़ानदान को देखकर चकरा गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँगी क्या और मेरा गुजारा कैसे होगा। खैर, अगली सुबह मुझे उठे अभी देर नहीं हुई थी, तभी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैं जानती थी कि मेहमान एक बार फिर से मेरे सर पर आ गए होंगे। मैंने बामुश्किल मुस्कुराहट सजाकर दरवाज़ा खोला और ऐन मेरी तवक्को के मुताबिक वो सब कज़नें और औरतें एक बार फिर से मेरे कमरे में जमा हो गई थी। इतनी सुबह उन सबको देखकर मेरा तो सर ही चकरा कर रह गया था। वो सब मायनी खेजी से मेरी तरफ देख रही थी और अजीब अजीब सवाल कर रही थी। मुझे उनकी बेबाकी की वजह से बेहद शर्म आई। कम अज़ कम इंसान को थोड़ी शर्मो हया कर लेनी चाहिए, मगर यहाँ पर जैसे किसी को अखलाकियात का पता ही नहीं था। अब तक मुझे सिर्फ अपनी सांस ठीक लगी थी। बामुश्किल उन औरतों और लड़कियों के टोलों से मैंने अपनी जान छुड़वाई और नीचे आ गई। नाश्ते के बाद मेहमान खातीन फिर से मुझे घेर कर बैठ गईं। मेरी नंद ने मुझसे कहा, हौसला रखो, ये अगले कई दिन तक तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाली। और उसने सही ही कहा था। अगले कई दिन तक फंक्शंस में ही गुजर गए। फिर दावतों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। ये सब ख़त्म हुआ तो ज़िंदगी मामूल पर आ गई। मैंने घर के कामों में सास और नंद का हाथ बटाना शुरू कर दिया। ऊपर वाले पोर्शन में मेरी जेठानी अपने बच्चों और शौहर के साथ रहती थी। नीचे वाले पोर्शन में मैं, मेरी एक नंद और सास ससुर रहते थे। और सबसे ऊपर वाला पोर्शन मेरी सास की नंद यानी कि मेरे शौहर की फुफ्फो का था। वो बेवा थी और एक अरसे से यहीं पर रहती थी। उनके बच्चे बड़े और शादीशुदा थे। दिन का एक बड़ा हिस्सा वो हमारे घर में गुजारती थी। वो काफ़ी अच्छी खातून थी और बहुत ज़्यादा बातें करती थी। यूँ लगता था जैसे मेरी सास और उनकी आपस में बहुत ज़्यादा बनती है। मैं खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी, मगर मेरे शौहर का पूरा ख़ानदान एक ही गली में रहता था और अक्सर औकात हमारे घर में ही पाया जाता था। शुरू शुरू में इतना बड़ा ख़ानदान को संभालना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे जैसे आदत सी होने लगी थी। वो लोग काफ़ी अजीब से थे। यूँ लगता था जैसी अखलाकियात उन्हें छूकर भी नहीं गुजरी है। दूसरी की ज़ाती ज़िंदगी में अक्सर दखलंदाजी करते रहते थे। वो तो मेरी सास उन सब की हरकतों को अच्छे से समझती थी, तभी कभी कभी किसी को ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं करने देती थी। मुझे नहीं समझ आती थी कि मेरी सास ने इन सबको कैसे झेला है, मगर वक्त शायद इंसान को सब कुछ सिखा देता है। मेरी शादी को अभी 4 माह ही हुए थे कि ख़ानदान भर ने मुझसे ये बात पूछना शुरू कर दी कि खुशखबरी कब दे रही हो। उनके इस तरह से पूछने पर मुझे बहुत दुख भी होता था कि अभी तो मेरी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे। वो मुझसे ऐसे पूछ रहे थे जैसे 4 साल हो गए हैं। मेरी सास कभी तो इग्नोर कर देती और कभी बातें सुना देती थी। उसे भी अच्छा नहीं लगता था कि वो लोग बार बार आकर मुझसे ये सवालात करें, मगर मैंने महसूस किया कि लोगों की बातों से तंग आकर मेरी सास भी अब यही सब सोचने लग गई थी। एक दिन उन्होंने भी मुझसे ऐसे सवाल घूमते फिराते कर लिया। आगे से मैं क्या बोलती, खामोश हो गई। सबकी तरफ से मुझे एक ही प्रेशर आने लगा था। मैंने अम्मा को कॉल करके बताया तो अम्मा ने कहा कि परेशान मत हो, तुम इतने बड़े ख़ानदान में गई हो, ये सब तो मामूल की बातें हैं। मगर इन सब की बातें मुझे परेशान कर रही थी और कुछ भी नहीं। हमारे बराबर वाले घर में खातून रहती थी। सास की उनसे बहुत ज़्यादा बनती थी। वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन पड़ोसन हमारे घर आई तो सास ने बातों ही बातों में उनसे कहा कि मेरी बहू की अब तक ही उम्मीद नहीं हुई और ख़ानदान वाले बातें बना रहे हैं, हर वक्त बस यही सवालात करते हैं। वो औरत बोली, अभी तो इसकी शादी हुई है, तुम लोगों को इतनी जल्दी क्या है? सास बोली, मुझे तो कुछ नहीं है,
लेकिन खानदान वाले हर वक्त आकर इस बिचारी का जीना हराम करते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं कब तक उन लोगों के मुंह बंद करवाती रहूं। सास की बात सुनकर वो खातून बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारे को एक बाबा के पास लेकर जाती हूँ। वो तुम्हें एक वजीफा बताएंगे, जिसके बाद तुम्हारी बहू के हाँ खुशखबरी आ जाएगी। सास ने कहा ठीक है, कल दोपहर के वक्त हम दोनों साथ चलेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर मैं दिल बर्दाश्ता हो गई, क्योंकि मुझे लगता था कि कम अज कम मेरी सास इस तरह नहीं सोचेंगी। लेकिन अब वो भी खानदान वालों की बातों में आकर ये सब सोच रही थी। मुझे अपना आप एक इंतहाई फजूल लग रहा था। तभी मैं बिल्कुल खामोश हो गई। अगले दिन दोपहर के वक्त आई और सास को अपने साथ लेकर चली गई। मुझे नहीं पता था कि वो जिस बाबा के पास गई उन्होंने उनसे क्या कहा, मगर जब सास वापस आई तो बहुत खुश थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब जल्द तुम उम्मीद से हो जाओगी और फिर हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा। मैंने कहा कि आपको लगता है कि आपको ये सब करना चाहिए? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, खानदान वालों के मुंह बंद हो जाएंगे। एक पल को मैंने सोचा कि क्या खानदान वालों के मुंह बंद करने के लिए ये सब करना ज़रूरी है? उनका काम तो बातें करना है और वो हमेशा ही करते रहेंगे। मगर सास ने अब सोच लिया था कि वो ये सब करेगी। तभी मैं खामोश हो गई। मैं भी क्या बोलती। मेरे शौहर को भी ज़्यादा ये पसंद नहीं आया, लेकिन हम सब मजबूरन खामोश हो गए। सास ने कहा कि उसने मुझे वजीफ़ा बताया है, फिर उस वजीफ़े की वजह से तुम जल्द उम्मीद से हो जाओगी। बाद में मुझे पता चला कि सास ने उस बाबा को अच्छे खासे पैसे भी दिए थे। मैंने ये बात अपने शौहर से छुपा ली, क्योंकि अगर उन्हें बताती तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते, क्योंकि उन्हें इस तरह से पैसे ज़ाया करना, ख़ास तौर पर बाबों के चक्कर में पड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतने अरसे में मैं इतना तो उन्हें जान ही गई थी। सास ने भी मुझे मना किया कि उससे कुछ मत बताना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इस सब की वजह से जो भी होगा इसमें आप मुझे इल्ज़ाम मत देना। उन्होंने कहा ठीक है। सास बोली कि मैं अभी सूरह जिन का वजीफ़ा शुरू करूंगी तो 21वें दिन तो खुशखबरी मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं सबसे खुश तो नहीं थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद ये काम कर जाए और फिर ख़ानदान वालों के मुंह बंद हो जाएं। अब तो अक्सर लोग मुझे बांझ भी कहने लगे थे, जिस वजह से मुझे बहुत दुख होता था। मेरे शौहर मुझे समझाते थे कि लोगों की बातों को ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि जितना सोचोगे उतना ज़्यादा तुम्हें परेशानी होगी। मगर मैं क्या करती, पूरा दिन उन सब की बातें सुनती थी तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता। मैं रात को सुकून से सो भी नहीं सकती थी। ऐसा लगता था जैसे इस सब में मेरी ही गलती है। मेरी अम्मी भी मुझे समझाती थी कि तुम क्यों खुद को थका रही हो और अपने सर पर इस बात को सवार कर रही हो, जो होनी होगी औलाद हो जाएगी। मैं सबकी बातों को खामोशी से सुनती हूँ, मगर फिर भी इन सोचों को मैं भूल नहीं पा रही थी। सास ने अपना वजीफ़ा शुरू कर दिया। सास रोज़ाना 21 दिन तक वो वजीफ़ा करती रही। रोज़ मैं एक उम्मीद के साथ जागती और पूरा दिन यही सोचती थी कि जल्दी मुझे खुशखबरी मिलेगी। सास भी बहुत ही ज़्यादा पुरुम्मीद थी। उसे उम्मीद थी कि उसका ये वजीफ़ा काम कर जाएगा। उन्हीं दिनों मेरी बड़ी नंद हमारे घर पर रहने आ गई। मैं उनके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खेलती थी और वो भी मुझे पसंद करते थे। मुझे बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद थे। एक दिन नंद मुझे उनके साथ खेलते देख रही थी तो वो बोली कि कब तक दूसरों के बच्चों के साथ खेलती रहोगी, कि अपने बच्चे नहीं करने? उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। सास ने उसे मना किया, इस तरह से क्यों बात कर रही हो? तो उसने कहा कि मेरे ससुराल वाले भी मुझसे हर वक्त ये ही सब पूछते हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों को क्या मसला है, वो अपने काम से काम रखे ना। सास को ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती थी। बहरहाल उन्होंने अपनी बेटी को ये नहीं बताया कि वो वजीफ़ा करने लगी है, क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह से बात पूरे ख़ानदान में फैल जाएगी और लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कुछ दिन बाद वो वापस चली गई। सास ने अपना वजीफ़ा जारी रखा। अभी 21 दिन हुए थे कि वो सब हुआ जिसके बारे में मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था। उस दिन सुबह मैं सारे काम निपटा कर अपने कमरे में बैठी थी। अभी सास मेरे कमरे में आई। मैंने देखा उनके हाथ में एक नौमौलूदा बच्चा था। वो मेरे करीब आई और उसने मेरे हाथों में थमा दिया और बोली, ये लो, ये तेरा बच्चा है। मैंने हैरत से सास को देखा। मैंने कहा कि ये कहाँ से मिला है आपको? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, बस चुप करके तू इसे अपने पास रख ले और किसी को कुछ मत बताना। सास की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। इतना कहकर वो मेरे कमरे से चली गई। अभी उन्हें गए हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि मेरी गोद में पड़ा हुआ वो बच्चा रोने लगा।
मैं हैरत से अपनी गोद में पड़े उस चंद घंटे के बच्चे को देख रही थी। वो रोए जा रहा था और उसकी आवाज़ पूरे घर में फैल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो बच्चा मेरी सास ने कहाँ से लेकर मेरी गोद में डाला है। अभी मैं बैठी यही सब सोच रही थी कि उसी वक्त मेरी सास बच्चों का सुनकर मेरे पास आई और बोली, बहू तुम ये बच्चा कहाँ से लेकर आई हो? मैंने कहा, क्या मतलब कहाँ से लाई हो? मैंने उनकी तरफ हैरत से देखा और कहा कि ये बच्चा आप ही ने तो मेरी गोद में डाला है। सास ने कहा, तुम क्या कह रही हो? मैंने थोड़ा डाला है। मैंने कहा कि आपको गलत फहमी हुई है। कुछ देर पहले आप ही ने तो गोद में इस बच्चे को डाला है और डाल कर गई हैं। सास ने हैरत से नफ़ी में सर हिला लिया और बोली, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया। ये तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ये किसका बच्चा है और कहाँ से आया? मैंने हैरत से सास की तरफ देखा और कहा कि सच में मुझे नहीं पता। कुछ देर पहले आप ही मेरी गोद में इसे डाल कर गई हैं। मेरी बात सुनकर सास बोली, ये क्या माजरा है? हम दोनों परेशान हो गए हैं कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने कहा, मैं नहीं जानती हूँ, क्या पता ये बच्चा किसका है। सास ने मुझे कहा कि ठीक है, तुम यहीं बैठो, अभी किसी को कुछ मत बताना, मैं अभी वापस आती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। पीछे मैं परेशानी से बच्चे को गोद में लिए बैठी रही और मुसलसल रोए जा रहा था। कुछ ही देर में सास वापस आई तो उनके साथ पड़ोसी खातून थी, वही जो वजीफे के लिए सास को अपने साथ लेकर गई थी। सास ने उन्हें सारी बात बताई और बच्चा दिखाया। बच्चा देखकर वो कुछ पल को खामोश हो गई और बोली, ये तो जिन्नात का बच्चा है। उसकी बात सुनकर मेरी चीख निकलते निकलते बची। मैंने एकदम से बच्चे को उठाकर साइड पर रख दिया। सास और मैं परेशान हो गए। हमने कहा, जिन्नात का बच्चा, मगर वो हमारे पास क्या कर रहा है? सास बोली, तुम्हारे को जो वजीफा बताया था, शायद उसकी वजह से जिन्नात अपना बच्चा तुम्हारी गोद में डाल कर चले गए। अब मैं इस बच्चे को हाथ लगाने से भी डर रही थी, क्योंकि किसी जिन के बच्चे को मैं कैसे हाथ लगा सकती हूँ और उसे अपनी गोद में उठा सकती थी। सास और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि मैंने कहा, अम्मी अब क्या करूँ? उन्होंने कहा, ठीक है, परेशान मत हो, हम उस बाबा के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। फिर हम उस बच्चे को लेकर सास के साथ उस बाबा के पास चली गई। हमने उसे सारी बात बताई तो वो बोला, हाँ ये जिन्नात का बच्चा है, तुमने बच्चा मांगा तो जिन्नात ने अपना बच्चा तुम्हारी गोद में डाल दिया। मैंने कहा, लेकिन अब इसे वापस कैसे करूं? मैं किसी जिन के बच्चों को कैसे पाल सकती हूँ? बाबा ने कहा, ये सब तो मैं नहीं जानता, अब तुम्हें इस बच्चे को अपने पास रखना ही होगा, वरना जिन्नात तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। खौफ और डर की वजह से मैं और सास उस बच्चे को अपने साथ लेकर घर आ गए। नहीं जानती थी कि ख़ानदान वालों को हम क्या कहेंगे और मेरे शौहर वो कितने सवालात करेंगे। मेरी सास ने कहा कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे शौहर से बात कर लूँगी। मैंने कहा, ठीक है। मैं बच्चे को लेकर अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद सो गया। यूँ लग रहा था जैसे कोई है वहाँ पर मौजूद जो उसकी निगरानी कर रहा है। शाम को जब मेरे शौहर घर आए तो सास ने उन्हें बच्चा दिखाया और सारी बात बताई, जिस पर पहले तो वो बहुत गुस्सा हुए कि आप लोगों को इस तरह से करने की क्या ज़रूरत थी। फिर बोले, अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग तो उल्टा हम लोगों पर ही इल्ज़ाम लगाएंगे। अब आप बताएं कि क्या करना है। कुछ देर सास सोचती रही, फिर बोली कि बेटा तुम दोनों ऐसा करो कि बच्चे को साथ लेकर हमारे गांव वाले आबाई घर में चले जाओ। वहाँ पर कोई भी इस बारे में सवाल नहीं करेगा। वैसे भी हमारा कोई रिश्तेदार वहाँ रहता नहीं, और अगर कोई करे भी तो कह देना कि ये हमने गोद लिया है, या फिर कुछ भी बोल देना। मगर सिर्फ वही जगह है जहाँ तुम लोग महफूज रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह का कोई बहाना नहीं बना सकते। इन सब की नज़र हर वक्त हमारे ऊपर रहती है। तुम लोग रात के वक्त यहाँ से बाहर निकलना। और सास ने मुझे कहा कि मैं अपने घर वालों को कुछ भी ना बताऊं। सास के हुक्म पर मैंने ये सब कुछ किया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने कोई भी बात अम्मी को बताई तो वो इस सब का इल्ज़ाम मुझे ही देंगे और एक हंगामा खड़ा कर देंगे। वो पहले मेरे ख़ानदान के साथ मिलकर रहने पर राज़ी नहीं थी कि मैं एक जॉइंट फैमिली में क्यों रहती हूँ। बहरहाल इस वक्त मैं कोई नई लड़ाई नहीं लड़ सकती थी, इसलिए अम्मा को मैंने कुछ भी नहीं बताया और खामोशी से रात के वक्त अपने शौहर के साथ गांव की तरफ रवाना हो गए। सास ने घर की चाबियां हमें दे दी थी। वो घर काफ़ी वक्त से बंद पड़ा हुआ था। सास ने कहा था कि वहाँ जाकर सफाई वगैरह कर लेना, और बाकी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। बिस्तर वगैरह सब कुछ था। हमने रास्ते से खाने की कुछ चीज़ें ली और गांव के लिए निकल गए। 4 से 5 घंटे हमें वहाँ पहुँचने में लग गए। जब तक हम वहाँ पहुँचे फजर हो चुकी थी। ये गांव काफ़ी ज़्यादा अजीब था।
आस पास आबादी ना होने के बराबर थी। हालांकि मैं भी गांव में रह कर आई थी, वहीं पली बड़ी थी, लेकिन पहली बार ऐसा गांव देख रही थी। यहाँ तो कोई घर भी नहीं था, बस 1 या 2 घर बने हुए थे, जिनमें से एक तो मेरी सास का था और दूसरा ना जाने किसका था। वो दोनों ही बंद पड़े हुए थे। मेरे शौहर ने बताया कि पहाड़ी की दूसरी तरफ इक्का दुक्का घर है और इस तरफ से यही 2 घर मौजूद हैं। हम लोग बच्चे को लिए इस घर के अंदर आ गए। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और उस ताले पर जंग था, न जाने कितने अरसे से उसको नहीं खोला गया था। सास ने जो चाबी हमें दी थी, हमने उसको लगाकर ताला खोलने की कोशिश की, मगर वो उसके अंदर ही फंस गई। अब हम परेशान हो गए कि हम क्या करेंगे। फिर मेरे शौहर ने ताला तोड़ने की कोशिश की, जो 1-2 झटकों में ही टूट गया। हम दरवाज़ा खोल कर अंदर गए। वहाँ पे बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं था। एक जगह लालटेन रखी हुई थी, जिसे हमने जला लिया। कम से कम अभी के लिए हमारे लिए यही काफ़ी था। रोशनी हो जाती तो हम बाकी चीज़ों का इंतज़ाम कर सकते थे। मैंने एक बिस्तर को झाड़ कर बच्चे को उस पर रखा और इधर उधर का जायज़ा लेने लगी। यहाँ सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। ओढ़ने के लिए मैंने कुछ कंबल वगैरह निकाले और हम लोग सो गए, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। परेशानी तो हमें बहुत ज़्यादा थी, मगर नींद इंसान को कांटों पे भी आ जाती है। हमें भी आ गई। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो सूरज निकला हुआ था। मैंने उठकर देखा तो बच्चा खामोशी से सो रहा था। मैं हैरान हुई कि इतनी देर में एक बार भी उसने आंख नहीं खोली और ना ही उसके रोने की आवाज़ आई। मैं उसे अच्छी तरह कंबल उड़ाकर खुद बाहर आ गई। तो जब मेरे शौहर भी उठ गए, हमने नाश्ता वगैरह बनाया। फिर मैं घर की सफाई करने लग गई। तभी उस बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं उसके पास गई तो एकदम से वो खामोश हो गया। मुझे यूँ महसूस हुआ कि वहाँ पर कोई मौजूद है। फिर मैंने उसे अपना ख्याल समझकर सर झटक दिया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा वापस सो गया। मैं नहीं जानती थी कि इसका ख्याल कौन रख रहा है, कौन उसे सुला रहा है और दूध पिला रहा है, मगर मुझे इतना पता था कि कोई तो है जो इसके पास रहता है, जिसे कोई इसकी हिफाजत कर रहा हो। इस गांव में दूर एक छोटी सी दुकान बनी हुई थी। मेरे शौहर वहाँ से जाकर ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेकर आ गए। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो शहर जाकर बाकी चीज़ें ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रोशनी का बिल्कुल भी इंतज़ाम नहीं था, इसलिए हमें लालटेन वगैरह की बेहद ज़रूरत थी। मैंने अपने शौहर को बताया कि इस बच्चे का कोई ना कोई ख्याल रख रहा है, मगर वो मुझे सिर्फ महसूस होता है, नज़र नहीं आता। शौहर ने कहा कि जिन जिनों का वो बच्चा है वही इसका ख्याल रख रहे होंगे, और कौन होगा। मैंने कहा हो सकता है, लेकिन हम किस तरह एक जिन के बच्चे को संभाल रहे हैं और वो जिन भी हमारे आसपास रहें। अगर हमारे से कोई गलती हो गई तो वो इसकी सज़ा हमें ही देंगे। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब इनकी मर्जी होगी वो इसको यहाँ से ले जाएंगे। शौहर के समझाने पर मैं खामोश हो गई। शायद वो ठीक ही कह रहा था। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब हमने जिनके बच्चे को अपने पास रख जो लिया था, उसका बेहद ख्याल रखना था। हमें कुछ दिन में ही उस बच्चे के साथ उनसियत होने लगी। आसपास कोई भी नहीं होता था। जो हमारे करीब एक घर था वो भी खाली था, मगर यहाँ पर अजीब अजीब से वाक़यात होने लग गए थे। यूँ लगता था जैसे कोई और मखलूक यहाँ पर मौजूद है। कभी रात के वक्त दरवाज़ा बजने की आवाज़ आती तो कभी किचन में बर्तन खटकने की आवाज़ आती थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम किस जगह पर क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। मैंने सास को इस सब के बारे में बताया तो वो बोली कि परेशान मत हो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना जाने कब सब ठीक होगा। मैं तो अब सबसे परेशान हूँ, आपने ये वजीफ़ा किया ही क्यों? वो बोली शायद मुझसे गलती हो गई होगी, मगर अब क्या करें, अब हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। मैंने कहा कि वो जिन अपना बच्चा कब लेकर जाएंगे? मैं सबसे बहुत परेशान हो रही हूँ। वो बोली जब उनका दिल करेगा वो तभी लेकर जाएंगे। अब तुम्हें इस बच्चे का ख्याल ज़रूर रखना है, वरना वो इसकी बहुत बुरी सज़ा देंगे। मैंने कहा आप उस बाबा के पास जाएं और उससे कुछ हल पूछें, कोई ना कोई हल तो होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगी और उससे जाकर पूछूंगी कि इस सब का क्या हल है। शायद कुछ ना कुछ समझ में आ जाए और हम इस मुसीबत से बाहर आ जाएं। उनके कहने पर मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली हुई कि जल्दी मेरी इस जिन के बच्चे से जान छूट जाएगी। एक शाम को मैं घर पे अकेली ही बैठी हुई थी।
मेरे शौहर बाहर किसी काम से गए हुए थे। मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो मैं अंदर आई, देखा वो रोए जा रहा था। मैंने उसको उठाकर चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। उसके मुसलसल रोने से मैं परेशान हो गई थी। मुझे किसी बच्चे को संभालने का कोई तजुर्बा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं कि वो रोना बंद कर दे, मगर वो मुसलसल रोए जा रहा था। अभी मैं परेशानी से सोच ही रही थी कि उसी वक्त वहां पर एक लड़की नमूदार हुई। वो बहुत ज़्यादा हसीन थी। एक पल का तो मैं उसका हुस्न देखकर दंग ही रह गई थी। अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी हसीन लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। बस बच्चे का रोना भूलकर मैं हैरत से उसको देखे ही जा रही थी। मेरे मुसलसल यूं देखने पर वो आगे बढ़ी और मेरे हाथ से वो बच्चा ले लिया। बच्चा उसकी गोद में जाते ही एकदम खामोश हो गया। मैं हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और डर के मारे मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। जो ख्याल मुझे छू कर गया, शायद वही हकीकत हो। मैं अपनी जगह जमकर खड़ी रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं क्या करूं। तभी वो लड़की मुझसे मुखातिब हुई और बोली, मैं एक जिनजादी हूं और ये बच्चा मेरा है, मगर तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मैंने हैरत से उसे देखा और कहा कि मैंने कैसे बच्चा छीन लिया तुम्हारा। वो गुस्से से मुझे देखती रही और कुछ भी नहीं बोली। वो कुछ देर बाद वहां से गायब हो गई और बच्चा छोड़ गई। मैंने बच्चे की तरफ देखा तो वो सो रहा था, बहुत ही गहरी नींद में था। पहली बार वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने धीरे से उसके चेहरे को छूना शुरू कर दिया। बेशक वो जिनका बच्चा था, लेकिन था तो बहुत ही खूबसूरत और मासूम। एक पल को मेरा दिल चाहा काश के वो मेरा बच्चा होता, मगर फिर उस लड़की का चेहरा और उसके गुस्से भरी आंखें याद करके मुझे खौफ ने अपने हसार में ले लिया था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो हमें नुकसान न पहुंचा दे। अभी मैं बैठी यही सब सोच रही थी कि तभी मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने मुझे यूं सोचों में गुम देखा तो कहा कि सलमा, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। मैंने कहा कि इसकी माँ आई थी और वो मुझे धमकी देकर गई है कि मैंने उसका बच्चा उससे छीन लिया है, मगर आप ही बताएं हमने कब उसका बच्चा छीना है। उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, वो बच्चे के बिना जी रही है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। सब बेहतर हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। शौहर के समझाने के बावजूद मेरे दिमाग में गुस्से वाली निगाहें घूमती रहीं, कहीं वो हमें नुकसान न पहुंचा दे। इस ख्याल से मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मैं बार बार उठकर उस बच्चे को देखती, न जाने अब मुझे क्यों बहुत ही अच्छा लगने लग गया था। उस दिन के बाद से मैंने उस बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो शायद ये बात उसकी माँ को भी पसंद नहीं आई। एक दिन वो मेरे पास आई और उसने मुझे धमकी दी कि मैं उसके बेटे से दूर रहूं। उसने मुझसे कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं इससे यहाँ से लेकर नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे बेटे को हाथ लगाओ या उसके करीब भी जाओ। मैंने कहा वो एक बच्चा है, मैं उससे नफरत नहीं कर सकती। उसने कहा लेकिन तुम इससे मोहब्बत भी नहीं कर सकती क्योंकि वो एक जिन का बच्चा है, ना कि तुम्हारा। ये कहकर वो नफरत से मुंह फेर कर चली गई। मुझे समझ नहीं आई कि वो इस तरह क्यों कर रही है। अगरचे वो एक माँ थी, लेकिन फिर भी उसे इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। मैं कौन से उसके बच्चे को छीन रही थी। कुछ दिन बाद मेरी सास का फ़ोन आया और उसने कहा कि मैंने उस बाबा से बात की है और उसने मुझे बताया है कि ये जिनका बच्चा जिन्होंने हमारे वजीफे के बाद हमारी गोद में डाला है, अब वो हमारे से इस बच्चे को तभी वापस लेके जा सकते हैं जब हम जिन्नात की एक शर्त को पूरा करेंगे। मैंने कहा कि कौन सी शर्त और किस तरह की शर्त। मेरी सास ने कहा कि बाबा जी जब चिल्ला काटने जाएंगे तभी बताएंगे कि कौन सी शर्त। मैंने एक पल को सोचा और कहा, अम्मी को ऐसा लगता है कि ये बाबा जी सही है। उन्होंने कहा कि क्या मतलब। मैंने कहा कि मुझे तो कोई फ्रॉड लग रहा है। तो वो बोली नहीं जानती, मुझे तो पड़ोसन उसके पास लेकर गई थी, लेकिन अब वो क्या चाह रहा है, अब हमें उसकी सुननी ही पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, आप इससे पूछें कि क्या शर्त है, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। मैं फ़ोन रख कर अंदर आ गई और उस बच्चे के पास बैठ गई। उसे देखते देखते एकदम मुझे ख्याल आया कि अगर ये मुझसे दूर हो गया, और उस ख्याल ने मेरा दिल जकड़ लिया। मुझे लगा कि जैसे अगर वो मुझसे दूर हो जाएगा तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। मैं नहीं जानती थी कि कब और किस वक्त मुझे उनसीयत सी हो गई थी, मगर अब मैं खुद उससे दूर नहीं रहना चाहती थी। एक पल को दिल किया कि इसे लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं, मगर फिर इसकी माँ को याद करके मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो वो मुझ तक पहुंच जाएगी और मुझे और मेरे घर वालों को बर्बाद करके रख देगी, क्योंकि वो मुझे धमकी दे चुकी है। और जिन्नात से इस तरह से लड़ना और उनकी धमकी को संजीदा ना लेना हमें ही नुकसान पहुंचा सकता था। मुझे यहाँ रहते हुए कुछ दिन हो गए थे। यहाँ पर अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात तो हो ही रहे थे और मैं अब तक आदी नहीं हुई थी इन सब चीज़ों की।
कभी कहीं से किसी चीज़ की आवाज़ आती तो कभी क्या रात को मुझे लगा कि कोई मुझे बुला रहा है। बहुत ही हल्की सी आवाज़ रही थी और कोई मुझे पुकार रहा था। मैं उठकर बैठ गई। डर के मारे मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैंने अपने शौहर से कहा कि हम यहाँ से वापस चलते हैं, मुझसे यहाँ मज़ीद नहीं रहा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, हमें यहीं रहना पड़ेगा, वरना ख़ानदान वाले हमारे ऊपर बातें बनाएंगे। मैंने कहा मैं यहाँ पर रहने की और हिम्मत नहीं रखती, मुझे हर वक्त डर लगता रहता है, यहाँ अजीब अजीब से वाक़यात होते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन की बात है, सब्र कर लो। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह जब मैं पानी भरने चश्मे के पास गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक औरत बैठी हुई है और कपड़े धो रही है। मैं हैरान हुई कि वो औरत यहाँ पर कैसे आ गई, क्योंकि यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं रहता था और अब तक तो मैंने यहाँ पर किसी औरत को नहीं देखा था। मैंने उससे कोई बात किए बिना खामोशी से वहाँ पर बैठकर पानी भरने लगी और मैंने देखा कि वो औरत इतने भारी कपड़े और कंबल आराम से बिना किसी परेशानी के धोई जा रही थी। मुझे एक पल को लगा कि कोई बहुत ही मजबूत औरत है, या शायद गांव की औरतें ऐसी ही होती हैं। लेकिन मैं भी एक गांव की औरत थी और गांव में ये बड़ी बड़ी हम तो 2-3 मिलकर ही धोते थे, मगर ये अकेले किस तरह से धो रही है उसे देखे जा रही थी। तभी मेरे देखते ही देखते उसने वो कंबल उठाया और उसे सुखाने के लिए फैला दिया। तभी मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ी और मेरी चीख निकल कर रह गई। उसके पाँव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मुझ में इतनी हिम्मत और सकत नहीं रही थी कि मैं अपनी जगह से उठकर भाग सकती। मेरी चीख पर उसने मुड़कर मुझे देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहा तुम इंसान कितने डरपोक होते हो। मैंने कहा तुम कौन? उसने कहा कि मैं एक जिनज़ादी हूँ। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा कि ये पूरा इलाका हमारा है, सालों से हमारा यहाँ पर बसेरा है, हम बहुत वक्त से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। उसकी बातें मुझे खौफजदा करने के लिए काफ़ी थी। वो मुझे देखकर हंसे जा रही थी। फिर बोली, तुमने हमारे कबीले की एक लड़की के बेटे को उससे छीन लिया है ना, तुम वही हो ना? उसके इल्ज़ाम पर मैं खामोश होकर रह गई। मैं जानती थी कि वो उस जिन बच्चे की बात ही कर रहा है। मैंने कहा, मैंने उस बच्चे को उसकी माँ से नहीं छीना है और ना मेरा ऐसा कोई इरादा है। मैं नहीं जानती थी कि वो बच्चा मेरी गोद में किस तरीके से आया। मैं भी चाहती थी कि वो अपनी माँ के पास चला जाए। वो बोली, नहीं, तुम नहीं उसको छीना है। मैंने कहा, मैं आखिर उस बच्चे को क्यों छीनती? उसने कहा, तुम्हारे साथ नहीं, उस बाबा के ज़रिए जिन्हों को अपने काबू में करवाया हो। हमारे कबीले के बच्चे को अपने पास लेकर तुम देखो तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। उसकी धमकी से मैं बहुत डर गई। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली गई, मगर उस दिन के बाद से मैं बहुत डर रहा था कि घर से बाहर भी निकलना बंद कर दिया था। मगर उस बच्चे के साथ मेरी उनसे दिन ब दिन उनसियत बढ़ती जा रही थी। एक पल को मैंने सोचा कि मैं सास को मना कर दूं कि उस बाबा से कोई मदद न मांगे और इस बच्चे को लेकर वापस जहाँ से मैं आई थी वहीं चली जाऊं और हमेशा के लिए इसे अपने पास ही कहीं छुपा कर रखूं। मगर मैं जानती थी कि अगर मैं इस बच्चे को लेकर कहीं भी गई, चाहे दुनिया के किसी भी कोने पे क्यों न चली गई, वो जिनजात अपने बच्चों को ज़रूर वापस लाएंगे। ख़ास तौर पर इस बच्चे की माँ, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। वो अपने बच्चे को हर हाल में मेरे पास से ले जाना चाहेगी। अब मैं यहाँ रहकर थक गई थी। एक दिन सास बोली थी, उस बाबा ने कहा है कि जिनों की ये शर्त है कि कुछ दिन तुम्हें उनके पास रहना होगा। सास की ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ। ये किस तरह की शर्त है? आप मना कर दें उन्हें। उन्होंने कहा कि इस तरह से वो नाराज़ हो जाएंगे और वो सारी ज़िंदगी तुम्हें और हम सबको परेशान करते रहेंगे। मैंने कहा, आखिर आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है? आपको क्या ज़रूरत थी उस बाबा के पास जाने की और इस तरह से वजीफ़े करने की? उन्होंने कहा कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे पता है मैंने गलती की है, मगर हम क्या करें, जो होना था वो तो हो गया। अब तुम्हें उनकी शर्त माननी होगी, तभी हमारा उनसे पीछा छूटेगा। मैंने अपने शौहर को बता दिया था। वो भी गुस्सा होने लगे कि ये किस तरह की शर्त है। उन्होंने अपनी माँ पर भी कोई गुस्सा न किया और मुझ पर भी कि किस तरह ख़ानदान वालों की बातों से बचने के लिए तुम दोनों ने खुद को इस मसले में फंसा लिया है। मगर अब हमें जन्नात की शर्त माननी ही थी। एक दिन उसकी माँ मेरे पास आई और बोली कि तुम्हें हमारी शर्त के बारे में पता तो चल गया होगा, अब
تم اس کی شرط کو پورا کرو، تمہیں کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس آنا رہنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا ضروری ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، جب بچہ پیدا ہوا تو تمہاری گود میں ڈال دیا گیا تھا، اب اس بچے کے کچھ مہینے کے ہونے تک تمہیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہوگا اور وہ بچے ہمارے قبیلے میں ہی پلے بڑھیں گے۔ میں نے مجبوراً ہاں کر دی، اور تو کوئی راستہ تھا بھی نہیں میرے پاس۔ تبھی اگلے دن جن ساتھ آئے اور مجھے اپنے ساتھ اس قبیلے میں لے کر چلے گئے۔ میں ان کے ساتھ ان کے قبیلے میں رہنے لگ گئی۔ وہ بہت ہی عجیب لوگ تھے، میں انسان تھی، اور وہ جلسات کے ساتھ رہنے کا کتنا مشکل تھا، یہ پہلی بار مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ لوگ جنات سے کیوں ڈرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہر آہٹ پر چونک سا جاتا، یوں لگتا کہ ابھی کے ابھی وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے یا پھر مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے۔ اس ڈر میں نے کئی دن کاٹے۔ انہوں نے مجھے 2 سے 3 مہینے اپنے پاس رکھنے کے لیے کہا تھا، اور یہ 2 سے 3 مہینے مجھے صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے یہاں سے باہر نکلوں، کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب تک یہ شرط پوری نہیں ہو جاتی تب تک میں اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکتی تھی۔ مگر ایک بات تو طے تھی، کم از کم وہ بچہ وہاں پر میرے ساتھ تھا۔ وہ دن کے آدھے حصے میرے ساتھ رہتا اور آدھے حصے اپنی ماں کے پاس مجھے۔ بس وہ بچہ بہت پسند تھا، وہ مجھے بالکل اپنی سگی اولاد کی طرح ہی لگتا تھا۔ میں اسے کسی بھی طرح یہاں سے جانا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ مجھے 2 مہینے ہو گئے تھے یہاں پر رہتے ہوئے۔ پھر کچھ دن بعد ایک جنزادی میرے پاس آئی اور وہ بولی کہ 2 مہینے پورے ہو گئے ہیں، اب تمہارا یہاں سے جانے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن تم اس بچے کو اب دوبارہ کبھی بھی نہیں دیکھو گی، اور نہ تم اس کو دیکھنے کی کوشش کرو گی۔ اگر تم نے اس طرح کی تو اگلی بار اس سے بڑی سزا ملے گی، تمہیں بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ اگر تم نے دوبارہ سے ملنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں بہت نقصان پہنچائیں گے اور کوئی معافی نہیں دیں گے۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک جنزادہ آیا اور وہ مجھے واپس اس گاؤں میں چھوڑ آیا جہاں سے انہوں نے مجھے اپنے رشتہ دار کے ساتھ رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر میرے شوہر موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر کہا کہ تم آ گئی؟ میں نے کہا ہاں، میں اسے کبھی بھی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کروں گی۔ شوہر کی بولی دیکھو، ہم نے بہت مشکل وقت کاٹا ہے، اب اس طرح کوئی حرکت مت کرنا جس سے ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اور خاندان والے کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے، سب کو اپنے سوچنے کی بلکہ ضرورت ہے۔ ایک دن ہمارے اولاد ہوگی اور ہم اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہیں گے، اور وہ تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی، اس لیے تمہیں یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر کو سمجھانے پر میں نے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور میں ان کے ساتھ شہر واپس آ گئی۔ کچھ دیر بعد میں حاملہ ہو گئی، مگر آج بھی وہ بچہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے۔ روز میں اسے یاد کرتی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس سے جا کر ملوں، اس کے ہاتھ پاؤں چوموں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اگر میں کوشش کرتی تو میرا نقصان ہوتا، اور اب تو کچھ مہینے بعد میرے ہاتھ میں میرا اپنا بچہ آنے والا تھا، اس لیے میں دل پر پتھر رکھ کر بیٹھ گئی۔ مگر سچ ہے کہ مجھے اس سے بہت زیادہ انسیت ہو گئی تھی۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، انسان کو کیسے بھی اس سے انسیت ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔